Hello, my dear students, and welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. So, let us continue with this chapter Sound from class 9th Physics ICSE syllabus. We have covered a good portion of this chapter in the previous lectures. If you haven't watched the previous lectures, you can watch them by clicking on the link given in the description box of this video. The link will take you to the previous lectures of this chapter. So let us continue with this chapter. And if you are watching these lectures thoroughly, तुम्हारा पूरा chapter, sound का जो पूरा chapter है, it would be completely covered, and you would be prepared for your exams. So today, the topic that we would be starting with is factors affecting the speed of the sound. Let me tell you, children, that in the previous lecture itself, we have discussed some formulas, and we have also discussed numericals on those formulas. So that lecture was very important. It was numerical based. And today the lecture will be a little theory based, but the theory that which we are going to discuss today are really important. And from this topic, you get a lot of questions. So you need to maintain the notes that we will be writing today. Factors affecting the speed of sound in a gas. Basically क्या पढ़ रहे हैं सुनो, वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पर साउंड का क्या स्पीड होगा किसी गैस में डिपेंड करता है ना. The speed of sound in different gases is different. The speed of sound in oxygen is different than the speed of sound in nitrogen gas. Again, the speed of sound in carbon dioxide is again different. So वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करता है कि speed of sound in a gas क्या होगा. Number one, you have to remember there are 4 such factors जिस पर speed of sound depend करता है. Density of the gas, temperature of the gas, humidity present in the gas, and direction of the wind. Okay, if I'm talking about air, if the gas is a mixture of gases, air, तो direction of wind भी बताता है कि speed of sound क्या होगा. तो 4 factors हैं, यानी direction of the gas बोल सकते हो. अगर कोई single gas है तो direction of the gas. तो first factor जो है वो है density of the gas. Different gases have different density, उस पर डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द गैस. ठीक है, तो अलग अलग गैस का अलग अलग डेंसिटी होता है. द सेम मास ऑफ द गैस enclosed in a particular volume has different values of density. तो डेंसिटी पर डिपेंड करता है. Okay, there is an equation. Let me tell you about an equation, children, which tells us the speed of the speed of sound in a gas. That equation is V is equal to square root of gamma P upon rho. This equation is given by Laplace. किसने दिया? Laplace ने. याद रखना नाम साइंटिस्ट का. Laplace ने दिया ये इक्वेशन क्या बताता है? V is equal to, V means speed. V is standing for speed. We denote speed of sound. किसका speed? Sound का speed in a particular gas. It is equal to the square root of gamma into pressure. P stands for pressure divided by rho. Rho stands for density of the gas. Now here, if pressure is considered constant, pressure को मानते हैं कि constant है, pressure of the gas is not changing, so we can definitely say that V is proportional to 1 upon square root of rho, density of the gas. अच्छा, इसमें ये गामा क्या है? तुम सोच रहे हो सर ये गामा क्या है सर? Gamma is also a constant, and it has different values for different gases. Oxygen के लिए ये गामा का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू है. इस गामा के बारे में क्लास 11th में पढ़ोगे. ओके, व्हाट इज दिस गामा? अभी 10th में नहीं पढ़ना है. फिलहाल 10th के लिए सिंपल ये जानना कि गामा का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है. वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस के ऊपर. अलग अलग गैसेस का अलग अलग गामा का वैल्यूज होता है. करेक्ट, इट्स अ कांस्टेंट. तो हमने गामा तो कांस्टेंट है ही फॉर अ पर्टिकुलर गैस. प्रेशर को भी हमने कांस्टेंट कर दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ रो. ठीक है, इस फॉर्मूला का जैसे मैंने बताया कि तुम्हें डेरिवेशन नहीं पढ़ना है. डेरिवेशन अभी नहीं पढ़ना है 10th में. इट्स नॉट इन योर सिलेबस.
इस फॉर्मूला के बारे में ज्यादा तुम्हें इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है 10th में, ये गामा क्या है वो भी नहीं जानना है, ये सारी चीजें 11th में है, 11th में, अभी 9th में हो, 11th में पढ़ना है। ठीक है, इनफैक्ट मैं तुम्हें बता दूं कि ये फॉर्मूला एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्मूला है। सबसे पहला न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं बता दूं, न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी अपॉन रो। ये न्यूटन का दिया हुआ फॉर्मूला है। देखो इसमें दोनों फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ गामा नहीं है, न्यूटन वाले फॉर्मूला में गामा है। एक्चुअली न्यूटन गेव दिस फॉर्मूला फर्स्ट, बट दिस फॉर्मूला हैड सम एरर। ओके, एंड एरर था क्योंकि थियोरेटिकल वैल्यू जो आ रहा था v का, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था v का, v मीन स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस का, दोनों काफी अलग अलग थे, देयर वाज अ लार्ज डिफरेंस। तो लैपलेस ने सोचा, लैपलेस को लगा कि इस फॉर्मूला में कुछ ना कुछ एरर तो जरूर है, अदरवाइज इतना ज्यादा डिफरेंस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ v एंड थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ v में नहीं आना चाहिए। उसने करेक्ट किया और उसने यहां पर एक गामा ऐड किया। 11th में डिटेल में पढ़ोगे, मैं बता ही रहा हूं। तो न्यूटन का फॉर्मूला को करेक्ट किया लैपलेस ने, और ये फॉर्मूला हमारे पास उसने दिया। ठीक है, तो मैं मिटा दे रहा हूं। तो बेसिकली ये अभी हम बोल सकते हैं कि लैपलेस का ही दिया हुआ फॉर्मूला है, हालांकि न्यूटन ने इसका इनिशियल कुछ तो कंट्रीब्यूट किया ही था, फिर उसको करेक्ट किया लैपलेस ने, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है। तो इसी से हमें ये पता चलता है, जो एग्जाम में तुम्हारे आएगा, इस फॉर्मूला से कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में क्या आएगा कि ये जो डेंसिटी ऑफ द गैस पे डिपेंड कैसे करता है। तो हमने देख लिया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्पीड ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। ये लिखना पड़ेगा, लिखो। द स्पीड ऑफ साउंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली proportional to the square root of density of the gas। ठीक है, नंबर 2, द सेकेंड वाला कौन सा फैक्टर है? टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर किसका? गैस का। गैस का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ साउंड ऑफ द गैस विल ऑल्सो इंक्रीज। याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर और स्पीड ऑफ गैस। इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। द स्पीड ऑफ गैस, आई मीन स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, गलती से स्पीड ऑफ गैस बोल दिया, स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस increases with the increase in with the increase in टेम्परेचर ऑफ द गैस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना गैस का, उसी गैस में साउंड का जो स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि स्पीड ऑफ द साउंड इन अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिर्फ टेम्परेचर नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये एक्सपेरिमेंट से इस रिलेशन को डिराइव किया गया है। स्पीड ऑफ द गैस, फिर से स्पीड ऑफ द गैस बोल दिया, स्पीड ऑफ द साउंड इन अ गैस is directly proportional to the square root of the temperature of the gas, and the temperature is measured in Kelvin scale। T is measured, यहाँ जो T है ना वो Kelvin का T है, T is measured in Kelvin scale। याद रखना इस रिलेशन को। और जैसे फर्स्ट वाला रिलेशन हमने लिखा था उसको भी लिख लो, V is inversely proportional to square root of density। दोनों को ही मैथमेटिकली लिख लो, अच्छा रहेगा। नंबर 3, थर्ड, थर्ड क्या है? इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। यस, ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे गैस में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, मींस वाटर वेपर मॉइस्चर बढ़ता है, उस गैस की डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने से फिर स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा। इन अ वे ह्यूमिडिटी बढ़ने से, इफ द ह्यूमिडिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस, the density of the gas decreases। And what is the first point telling you? If the density decreases, then speed of the gas should increase। That means a more humid air will have the speed of sound traveling faster in it। तो उसे लिखेंगे the speed of sound, सिंपल सा पॉइंट है, the speed of sound in air increases
with the increase in humidity in air. सिंपल सी बात है. दैट मीन्स द साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन ह्यूमिड एयर देन इन ड्राई एयर. एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये. एमसीक्यूज में भी ये कई बार ये लाइन से क्वेश्चन बनाया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. उसमें चार ऑप्शंस रहेंगे, तीन ऑप्शंस उसमें गलत रहेंगे, चारों मिलते जुलते हैं यू नो लेकिन उसमें से तीन एरर एरर एरनियस रहेगा और एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा. वो ऐसा रहेगा, द स्पीड ऑफ दस द साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन ह्यूमिड एयर देन इन ड्राई एयर. तुम्हें इसको टिक करना है. इसका उल्टा होगा तो गलत है. अगर ऐसा लिखा हुआ है द साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन ड्राई एयर देन इन ह्यूमिड एयर, तो वो गलत है. अगर ऐसा भी लिखा हुआ है द साउंड ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड इन ह्यूमिड एज वेल एज इट डज इन ड्राई एयर, वो भी गलत है. ह्यूमिड एयर में स्पीड बढ़ जाएगा. तो यू शुड नो द पॉइंट्स रियली नाइसली. क्वेश्चंस बहुत यू नो इंटरेस्टिंग मैनर में बनाया जा सकता है. एमसीक्यूज बन सकता है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकता है इसमें, थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन दैट हाउ डज ह्यूमिडिटी ऑफ द गैस अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. लिख लो इसको, द साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन ह्यूमिड एयर देन इन ड्राई एयर. ठीक है, डन. एंड द फोर्थ factor on which this depends is direction of the gas. मैं यहाँ direction of wind लिख रहा हूँ. इनफैक्ट ये डायरेक्शन ऑफ गैस भी लिखेंगे तो चलेगा, या स्लैश लेके गैस लिख दो. डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में ये गैस मूव कर रहा है, या विंड है तो विंड ब्लो कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में साउंड भी प्रोपगेट कर रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड वुड इंक्रीज. लाइक इफ देयर इज अ म्यूजिक बीइंग प्लेड फ्रॉम द स्पीकर, गाना बज रहा है, and here somebody is listening the music, the direction of propagation of sound is this. इस डायरेक्शन, मैंने एरो जो बनाया, इस डायरेक्शन में साउंड प्रोपगेट कर रहा है और विंड भी मानो इसी डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है. द एयर इज ऑल्सो ब्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन. तो क्या होगा, ये जो स्पीड ऑफ साउंड है वो फास्टर हो जाएगा, इसके कानों तक जल्दी पहुंच जाएगा वो साउंड. हालांकि अगर उल्टा हुआ, if the direction of wind is opposite to the direction of propagation of sound, then this sound will take little more time to reach to this person's ear. तो ये डायरेक्शन ऑफ विंड पर भी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है. लिखेंगे द स्पीड ऑफ साउंड, सिंपल सा पॉइंट है, इसे हम प्रैक्टिकली इमेजिन भी कर सकते हैं. द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस according to the direction of travel of wind. Direction of travel of wind या फिर गैस. इसको और एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इंक्रीजेस कैसे डिक्रीजेस. इफ द विंड इज ब्लोइंग, या फिर गैस, इफ द विंड और गैस इज ब्लोइंग in the direction of propagation of sound, in the direction of propagation of sound, तो क्या होगा, the speed of sound increases. while उल्टा होगा, अगर साउंड का प्रोपगेशन का डायरेक्शन और विंड का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो डिक्रीजेस. while if it is blowing in a direction opposite to that of sound, the speed of sound decreases. The speed of sound decreases. वेरी गुड, ये हो गया ये टॉपिक कंप्लीट.
फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस हमारा कंप्लीट हुआ यहां पर। इसके बाद जो टॉपिक है वो है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पर स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस डिपेंड नहीं करता है। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिर्फ हमें ये नहीं पढ़ना है कि कौन से फैक्टर्स पर स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस डिपेंड करता है, कौन से वैसे फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड नहीं करता है स्पीड ऑफ साउंड, लेकिन हमें लगता है कि शायद डिपेंड करे। इसीलिए कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये टॉपिक पढ़ना है कि नहीं, इन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है। तो टॉपिक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। वैसे फैक्टर्स जो कंफ्यूज करता है हमें, हमें लगता है कि शायद ये फैक्टर्स अफेक्ट करे लेकिन नहीं करता, इसीलिए इसे पढ़ना पड़ेगा हमें। ऐसा लगता है इस फॉर्मूला को देखकर, ये जो फॉर्मूला जिससे हमने हमें क्या पता चलता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज व्हाट। इस फॉर्मूला को देखकर हमें लगता है कि देयर इज अ प्रेशर टर्म इन द फॉर्मूला, प्रेशर ऑफ द गैस पी। तो हमें लगता है कि स्पीड ऑफ द साउंड इन अ गैस डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑन द गैस, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जैसे फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, इफ प्रेशर इंक्रीजेज, देन साथ ही साथ क्या होता है, प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करता है डेंसिटी ऑफ द गैस ऑल्सो इंक्रीजेस। मीन्स इफ द न्यूमरेटर इंक्रीजेस डिनोमिनेटर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो पी बाई रो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन मास ऑफ अ पर्टिकुलर गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ पर्टिकुलर गैस। दैट मीन्स हम अगर पी को सिर्फ चेंज कर रहे हैं, ये नहीं सोचना चाहिए सिर्फ पी चेंज हो रहा है। अगर हम पी को चेंज करेंगे, प्रेशर ऑन द गिवन मास ऑफ अ गैस चेंज करेंगे, तो साथ ही साथ डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा गैस का। प्रेशर इंक्रीजेस डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। एंड इन अ वे मैथ्स कहता है कि अगर न्यूमरेटर को इंक्रीज करने से डिनोमिनेटर भी इंक्रीज कर रहा है, इन द सेम मैनर, या फिर डिक्रीज करने से डिनोमिनेटर भी डिक्रीज कर रहा है इन द सेम मैनर, तो सेम मल्टीपल्स में, तो ये रेशियो कांस्टेंट रहता है। ये रेशियो कांस्टेंट रहता है। एग्जांपल के तौर पर, मैथ्स के एग्जांपल के तौर पर देखो, अगर मान लो प्रेशर है, मान लेते हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल 3 ATM या 3 यूनिट्स है, कोई भी यूनिट ले लो, 3 यूनिट्स प्रेशर है P, और डेंसिटी नीचे मान लो है 2 यूनिट्स, तो रेशियो है 3/2। P अपॉन रो का रेशियो क्या हो गया, 3:2। अब हमने प्रेशर को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, मतलब अभी हमने प्रेशर को 12 कर दिया, 4 3 12। तो क्या देखा गया कि ये जो डेंसिटी है वो भी 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, 2 4 8 बन जाएगा। तो प्रेशर तो हमने चेंज किया पी, साथ साथ डेंसिटी भी अपने आप 8 हो गया। इसको काटेंगे, रेशियो वुड बी स्टिल 3/2, 3/2। तो दिस P by rho is always a constant for a given mass of a gas. Hence प्रेशर पर, हालांकि फॉर्मूला से देखने से लग रहा है प्रेशर पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखा तो द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, जब तुम एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ना तब तुम रियलाइज करोगे इस पॉइंट से। इस पॉइंट को हम लोग लिखने के पहले मैंने समझा दिया, अभी मैं जस्ट लिखा दूंगा तुरंत। एक क्विक सा बात मैं तुम लोगों के साथ करना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द क्लास 9 स्टूडेंट्स। क्लास 10th में मैं रेगुलर 1 year लॉन्ग इंटेंसिव लाइव ऑनलाइन कोर्स कवरिंग फुल सिलेबस ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस स्टार्ट करने वाला हूं। पिछले साल भी किया था, करंट ईयर में भी बैच चल रहा है अभी उसका, और उसके पिछले साल भी चला था, एंड बहुत सक्सेसफुली इसका आउटकम आया। द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड वेरी गुड परसेंटेजेस, 95 to 98 99% मार्क्स भी लाए बच्चे।
a lot of students got more than 90% marks, जो इस इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस पिछले सालों से द रिजल्ट वाज आउटस्टैंडिंग। इस साल भी तुम लोग जब 10th में जाओगे, अभी 9th में हो, अभी से कुछ महीने बाद 9th तो खत्म होने को है, एंड तुम्हारा 10th अभी स्टार्ट होने वाला है कुछ ही महीनों बाद, तो जब 10th में जाओगे एंड यू वांट अ प्रॉपर यू नो गाइडेंस, सिंसियर गाइडेंस, डेडिकेटेड गाइडेंस, जो तुम्हें बिल्कुल भी फ्री रिकॉर्डेड यूट्यूब लेक्चर्स में नहीं मिलता है। अगर ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स मेरे साथ करना चाहते हो तो तुम इस कोर्स को ज्वाइन करना। ये 1 ईयर लॉन्ग इंटेंसिव लाइव कोर्स है, पूरे 1 साल तक चलेगा। ये कब स्टार्ट होगा? ये मार्च 2023, अभी हमारा कुछ ही दिनों बाद मार्च 2023 आ जाएगा। मार्च 2023 के लास्ट वीक से स्टार्ट होगा, लास्ट वीक से स्टार्ट होगा। इसका एग्जैक्ट डेट मैं उन लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जो लोग रजिस्टर किए रहेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, सीट्स भर रहे हैं एंड सीट्स आर लिमिटेड। कैसे इस कोर्स में रजिस्टर करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या रूटीन है, एक डेडिकेटेड रूटीन में हम लाइव क्लासेस लेंगे, क्या रूटीन है, क्या टाइमिंग है, असाइनमेंट्स है, बहुत सारी चीजें हैं। रिकॉर्डेड सारे क्लासेस को रिकॉर्डेड तुम्हें मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगे सारे रियल टाइम में, तो मेरे साथ इंटरेक्शन करोगे। लेकिन अगर बाई चांस कोई क्लास मिस भी हो जाए तो उसके रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगे। सो वो रिकॉर्डेड क्लासेस रिकॉर्डिंग्स रहेंगे, तुम्हें उनके पीडीएफ मिलेंगे, सारे डिटेल्स सारे फीचर्स ऑफ दिस कोर्स तुम्हें इस लिंक में मिल जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको डेफिनेटली देखना। समय कम है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, और रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 100 रुपीज है पर सब्जेक्ट। तुम्हें जो सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना है वो उसके लिए तुम रजिस्टर कर सकते हो। जिस एप्लीकेशन पे मैं पढ़ाऊंगा वो है वाइज ऐप, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और फिर सारे डिटेल्स एक्चुअली नीचे दिया हुआ लिंक पर है, क्लिक करके उस वीडियो को देखना, पूरा तुम्हें डिटेल्स मिल जाएगा। अगर सिंसियरली मेरे गाइडेंस में 10th की तैयारी करना चाहते हो, अपनी आईसीएसई की तैयारी करना चाहते हो, तो तुम्हें इस कोर्स में ज्वाइन करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि फ्री यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स के चक्कर में अपना 10th में मत रहना। 9th में भी देखे हो कि मैं यूट्यूब वीडियोस तो डाल रहा हूँ, लेकिन एक कोई डेडिकेटेड रूटीन नहीं रहता है उसके लिए, क्योंकि यूट्यूब में चीजें फ्री में होती हैं तो मुझे जब समय मिलता है मैं डालता हूँ। लेकिन ये पेड कोर्स जब कर रहे हो, इसके लिए एक डेडिकेटेड रूटीन है, और ये एक प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में पूरा कोर्स, एक गिवन टेन्योर में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, जिसमें हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आफ्टर एवरी टॉपिक करते हैं। तुम्हें काफी मजा आएगा एंड काफी इंप्रूवमेंट होगा। इसके लिए तुम्हें डेमो क्लासेस भी हैं, सारे डिटेल्स तुम्हें उस लिंक में मिल जाएगा। अब मैं तुम्हें सिर्फ बोलूंगा वो लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देखो, पूरा डिटेल्स है, और इसमें जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करो। चलो अब हम इस टॉपिक को लिखते हैं, टॉपिक को लिखते हैं, और उस लिंक को बाद में भी देख सकते हो। अभी इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, और याद करके आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू वॉच दैट वीडियो। ओके, फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। मैं कमेंट सेक्शन में भी वो लिंक डाल दूंगा, पिन करके रख दूंगा। नाउ लुक एट दिस, कौन कौन से फैक्टर है, मैंने अभी अभी बताया था, प्रेशर पर नहीं डिपेंड करता है। तो प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, याद रखना, प्रेशर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता है, हालांकि फॉर्मूला में प्रेशर टर्म है। लिखेंगे द स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस is independent, is independent of pressure। यानी प्रेशर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। अब इसका रीजन क्यों, सिर्फ इतना लिखना काफी नहीं है। अगर मान लो कि वो पूछ दिया एग्जाम में, वो पूछता भी है व्हाई द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, तुम्हें ये रीजन लिखना पड़ेगा। और वैसे भी इसे, इस पॉइंट को तुम्हें एक्सप्लेन करना है इन द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो, द रेशियो, कौन सा रेशियो मैंने अभी बताया था, पी अपॉन रो, ये रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, ये कांस्टेंट ही रहता है।
remains unchanged with the change in pressure. With the change in pressure. थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं. व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, मान लो प्रेशर इंक्रीज किया. प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हुआ चिल्ड्रन? किसी भी गैस है उसके ऊपर इस तुमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो छोड़ उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. प्रेशर इंक्रीज कर दिया, एकदम चारों तरफ से प्रेशर लगा दिया, तो ये छोटा हो जाएगा ना, कम वॉल्यूम कम हो जाएगा. वॉल्यूम कम होने से क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. तो व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, लेकिन मास तो अनचेंज है इसलिए डेंसिटी इंक्रीजेस. समझ में आ रहा है? व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस क्या हो गया? वॉल्यूम का क्या हो गया? वॉल्यूम छोटा हो गया, स्क्वीज हो गया. वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम तो डिक्रीज हुआ बट मास रिमेन्स अनचेंज्ड. मास तो नहीं चेंज हुआ बट मास रिमेन्स अनचेंज्ड. मास तो चेंज नहीं हुआ, मास ऑफ द गैस रिमेन्स सेम. और हम जानते हैं फॉर्मूला कहता है डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास अगर कांस्टेंट है तो डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. ये फॉर्मूला क्लास 6 में पढ़े हो, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास अगर चेंज नहीं हो रहा है तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. वॉल्यूम यहां पर डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा. सिंपल मैथ्स है, सिंपल फिजिक्स. सो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीजेस और क्या हो जाएगा? सो डेंसिटी इंक्रीजेस. इसीलिए मैंने अभी भी वो मैथ से एक एग्जांपल देके भी समझाया कि अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगा सेम मल्टीपल्स में. दैट मींस P by rho would remain same such that the ratio P upon rho remains constant. एकदम सिंपल. नंबर 2, वो कौन सा दूसरा फैक्टर है जिसे हमें लगता है कि शायद इफेक्ट हो लेकिन इफेक्ट नहीं करता है वो स्पीड ऑफ द साउंड को? वो है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. जब साउंड प्रोपगेट कर रहा है किसी गैस में, इट प्रोपगेट्स इन फॉर्म ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. वी हैव स्टडीड इट. तो उस वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है स्पीड का, साउंड का स्पीड. द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव. क्लियर है? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल पॉइंट. नंबर 3, वेवलेंथ पर भी डिपेंड नहीं करता है. जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो वेवलेंथ है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है. वेवलेंथ ऑफ द वेव. The speed of sound does not depend on the wavelength of sound wave. The speed of sound does not depend on the wavelength of the sound wave. फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड नहीं करता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. The speed of sound does not depend on the frequency of the sound wave. ठीक है? इन सारे पॉइंट्स को तुम्हें याद रखना है. नाउ दिस थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में कंफ्यूज है क्योंकि हमारा पास एक और फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का या फिर स्पीड ऑफ एनी वेव का. वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. जिस फॉर्मूला से हमें ये दिखता है
कि स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर वेव इज प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। देखने से तो लग रहा है सर ये तो वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ द साउंड। और आपने लिखा दिया कि ना तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। सी फॉर अ पर्टिकुलर scenario, this f into lambda, frequency into wavelength, is a constant। अगर मान लो उसी वेव का हम एक पर्टिकुलर वेव की बात कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दें, इफ आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, है ना, तो तुम्हें तुम्हें लगेगा कि सर वी भी तो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि इफ आई इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, जिस मल्टीपल में हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे उसी मल्टीपल में ये वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा। तो इन अ वे एफ इंटू लैम्डा वुड रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मान लेते हैं कि 4 हर्ज है और लैम्डा मान लेते हैं किसी वेव का 8 हर्ज है, 8 मीटर है, तो हमारा वी क्या है? 4 × 8, 32 मीटर पर सेकेंड। अगर हम, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा लैम्डा, अगर हम एफ को इंक्रीज करते हैं 2 टाइम्स, मतलब अभी हम एफ को बना दिया 4 × 2, फ्रीक्वेंसी को हमने डबल कर दिया, तो ये जो 8 है ये हाफ हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा सेम मल्टीपल में। तो इन एक तरह से देखा जाए तो ये 2 तो कट ही जाएगा, फिर से हमारा वो 32 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। यानी दिस एफ इंटू लैम्बडा वुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर वेव। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा सेम अमाउंट में, या वेवलेंथ को इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगा सेम अमाउंट में, वाइस वर्सा। तो एक तरह से देखा जाए तो एफ इंटू लैम्डा इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन वेव। इसीलिए स्पीड ऑफ द साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ, डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इस फॉर्मूला पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स पिछले लेक्चर में किया है, यू मस्ट हैव वॉच्ड देम। ये दोनों टॉपिक्स आज हम लोग कंप्लीट किए हैं। इसके बाद बहुत ही छोटा सा बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक बचा हुआ है, वो है वी विल कंपेयर द स्पीड ऑफ साउंड विद द स्पीड ऑफ लाइट, और फिर है हमारा अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ये सारे साउंड के बारे में है, उसके एप्लीकेशंस है। अल्ट्रासोनिक है बहुत ही, उसके बाद चैप्टर लगभग कंप्लीशन पर ही है। सुपरसोनिक भी क्या है वो भी हम पढ़ लेंगे, एंड द चैप्टर वुड एंड, एंड देन वी वुड स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, स्टडी वेल, टेक केयर।